हेलो स्टूडेंट्स, यूपीएससी गाइडिंग प्रिंसिपल्स चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम जनरल ज्योग्राफी की घटना चक्र को स्टडी कर रहे थे और इसमें अभी हम इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट कंप्लीट कर रहे हैं। अपने इस लेक्चर में हम एनर्जी और एनर्जी से रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे और एनर्जी के बारे में जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको एक बार रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एनर्जी मिसेलेनियस, ठीक है। Sources of energy that appear in form of coal, petroleum, natural gas and nuclear energy are commercial resources. They are also known as non-renewable resources, whereas solar and wind energy, biogas energy obtained from residue, geothermal and tidal energy, low hydroelectric and biomass energy are non-commercial and non-conventional sources. They are known as a renewable resources of energy. Renewable resource or new resource are those resources which are replenished by natural or circumstantial processes. Ministry of New and Renewable Energy gave approval to Consolidated Energy Policy from 26 December 2008. Solar energy is a huge resource of non-exhaustible form of energy. Solar energy is used for cooking, water purification, electricity generation, etc. India receives approximately 5 kilowatt per centimeter square of solar radiation energy up to nearly 300 days in a year. Rampur village is the first village in India which had installed its own solar energy plant and is situated in Uttar Pradesh. Rampur village is the first village in India which had installed its own solar energy plant and Rampur village is situated in Uttar Pradesh. In India, first solar photovoltaic plant of 2 megawatt capacity is installed in Bardhaman district of West Bengal near Asansol. Maharashtra is famous for Satara wind energy plant. Maharashtra is famous for Satara wind energy plant. According to the figures of Ministry of New Renewable Energy as on 28 February 2022, Tamil Nadu 9857.67 megawatt stands first in wind power production, followed by Gujarat 9043.82 megawatt. थर्ड नंबर पर है कर्नाटका 5077.20 मेगावाट एंड महाराष्ट्र 5012.83 megawatt. Electrical energy produced due to high and low tides in the sea is known as tidal energy. Electrical energy produced due to high and low tides in the sea is known as tidal energy. In India, there is a capacity to produce 8000 to 9000 megawatt of tidal electrical energy. In India, there are two major areas for tidal energy. Number 1, Run of Kutch and Gulf of Khambat, previously known as Gulf of Cambay, that is Gujarat coastal area. Maximum tidal range is 8 to 11 meter, whereas the average tidal range is 6.77 meter to 5.23 meter. In Run of Kutch, there is a production capacity of 1200 megawatt tidal electricity approximately. In Gulf of Khambat, ठीक है, in Gulf of Khambat there is electric production capacity of 7000 megawatt approximately. There is a tidal range of height 5 meter approximately, whereas the average tidal range is 2.97 meter. Number 2, Sundarban Delta in West Bengal. India's first geothermal electric plant is installed in Khammam in Andhra Pradesh, now Telangana in 2012. ठीक है. नंबर टू है सुंदरबन डेल्टा इन वेस्ट बंगाल. ठीक है. India's first geothermal electric plant is installed in Khammam in Andhra Pradesh, now Telangana in 2012. Geothermal energy based
Manikaran electrical plant is situated in Kullu of Himachal Pradesh. It is famous for hot water sources. Its height is 1760 meter. Electricity produced from hot water sources is situated in mountain valleys of Manikaran. Hot water sources are also found in Kashol 76 degrees centigrade, Kheer Ganga 49 degrees centigrade, and Pulga 44 degrees centigrade other than Manikaran. Contribution of non-conventional energy sources is approximately more than 14% of the total commercial energy produced in India. In 2019-20 in India, India's per capita energy consumption was equal to 1208 kilowatt hour. According to World Bank data, India's per capita energy consumption is 805 किलोवाट आवर इन 2021-2022। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि एनर्जी में हमने क्या क्या पढ़ा। Sources of energy that appear in the form of coal, petroleum, natural gas, and nuclear energy are commercial resources. They are also known as non-renewable resources, whereas as solar and wind energy, biogas, energy obtained from residue, geothermal and tidal energy, low hydroelectric and biomass energy are non-commercial and non-conventional sources. They are known as renewable resources of energy. Renewable resource or new resource are those resources which are replenished by natural or circumstantial processes. Ministry of New and Renewable Energy gave approval to Consolidated Energy Policy from 26 December 2008. Solar energy is a huge resource of non-exhaustible form of energy. Solar energy is used for cooking, water purification, electricity generation, etc. India receives approximately 5 kilowatt per centimeter square of solar radiation energy up to nearly 300 days in a year. Rampur village is the first village in India which had installed its own solar energy plant, and Rampur is situated in Uttar Pradesh. In India, first solar photovoltaic plant of 2 megawatt capacity is installed in Bardhaman district of West Bengal near Asansol. Maharashtra is famous for Satara wind energy plant. According to the figures of Ministry of New Renewable Energy as on 28 February 2022, Tamil Nadu 9857.67 megawatt stands first in the wind power production, followed by Gujarat 9043.82 megawatt, Karnataka 5077.20 megawatt, and Maharashtra 5012.83 megawatt. Electrical energy produced due to high and low tides in the sea is known as tidal energy. In India, there is a capacity to produce 8000 to 9000 megawatt of tidal electrical energy. In India, there are two major areas for tidal energy. First area is Run of Kutch and Run of Khambat, and second area is Sundarban Delta in West Bengal. ठीक है, in India there are two major areas for tidal energy. Number one, Run of Kutch and Gulf of Khambat, and second is Sundarban Delta in West Bengal. Number one, Run of Kutch and Gulf of Khambat, previously known as Gulf of Cambay, that is Gujarat coastal area. Maximum tidal range is 8 to 11 meter, whereas the average tidal range is 6.77 meter to 5.23 meter. In Run of Kutch, there is a production capacity of 1200 megawatt tidal electricity approximately. In Gulf of Khambat, there is electric production capacity of 7000 megawatt approximately. There is a tidal range of height 5 meter approximately, whereas the average tidal range is 2.97 meter. Second area for tidal energy is Sundarban Delta in West Bengal. India's first geothermal electric plant is installed in Khammam in Andhra Pradesh, now Telangana in 2012. Geothermal energy based Manikaran electrical plant is situated in Kullu of Himachal Pradesh. It is famous for hot water sources
Its height is 1760 meter. Electricity produced from hot water sources is situated in mountain valleys of Manikaran. Hot water sources are also found in Kasol 76 degree centigrade, Khir Ganga 49 degree centigrade and Pulga 44 degree centigrade other than Manikaran. Contribution of non-conventional energy sources is approximately more than 14% of the total commercial energy produced in India. In 2019-20 in India, India's per capita energy consumption was equal to 1208 kilowatt hour. According to World Bank data, India's per capita energy consumption is 805 kilowatt hour in 2021-2022. According to World Bank data, India's per capita energy consumption is 805 किलोवाट आवर इन 2021-2022। अब क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लिस्ट 1 में साइट दी गई है और लिस्ट सेकंड में एनर्जी, कौन सी एनर्जी के प्रोडक्शन से रिलेटेड है, कौन सी साइट, ये मैच करना है। तो सबसे पहले है साइट है पावागाड़ा। पावागाड़ा साइट है कर्नाटका में, ये किससे रिलेटेड है, सोलर एनर्जी से। नेक्स्ट है तातापानी, तातापानी है छत्तीसगढ़ में, दिस इज़ फॉर जियोथर्मल एनर्जी। नेक्स्ट है मुप्पांदल, मुप्पांदल है तमिलनाडु में और ये है विंड एनर्जी से रिलेटेड। नेक्स्ट है काकरापार, काकरापार गुजरात में है और ये रिलेटेड है एटॉमिक एनर्जी से। ठीक है, साइट और एनर्जी। पावागढ़ा कर्नाटका रिलेटेड है सोलर एनर्जी से, तातापानी छत्तीसगढ़ रिलेटेड है जियोथर्मल एनर्जी से और मुप्पांदल तमिलनाडु रिलेटेड है विंड एनर्जी से, काकरापार गुजरात रिलेटेड है एटॉमिक एनर्जी से। नेक्स्ट है विच स्टेट हैज़ द हाइस्ट पोटेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोलर एनर्जी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। According to the Ministry of New and Renewable Energy, Government of India, Rajasthan has the highest potential for the development of solar energy by 31st December 2020. State और capacity in gigawatt। ठीक है, गीगावाट पावर। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश में कितनी है सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी है 61.66। ठीक है, उसके बाद झारखंड में है 18.18, उत्तर प्रदेश में 22.83 GWP। ठीक है, और राजस्थान में 142.31 GWP। ये क्या है, सबसे ज़्यादा इनमें किसका हाईएस्ट पोटेंशियल है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोलर एनर्जी। तो वो स्टेट है राजस्थान। राजस्थान स्टेट का सोलर एनर्जी का पोटेंशियल है 142.31 गीगावाट पावर। ठीक है, 31 दिसंबर 2020 का ये डेटा है। सेकेंड नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश 22.83 गीगावाट पावर, झारखंड थर्ड नंबर पे है 18.18, मध्य प्रदेश फोर्थ नंबर पर है 61.66 गीगावाट पावर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। तो लिस्ट फर्स्ट में है पावर प्लांट्स और लिस्ट सेकंड में है टाइप ऑफ एनर्जी। सबसे पहले है चमेरा। ठीक है, तो पहले ऐसा करते हैं, इसका सोल्यूशन पढ़ते हैं, उसके बाद इसको मैच करेंगे। तो सोल्यूशन में क्या है, द कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट इज़ लोकेटेड इन तमिलनाडु। कुडनकुलम पावर प्लांट कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। ये कैसा है, न्यूक्लियर है। ठीक है, कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट है और ये कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड इन कोलैबोरेशन विद रशिया एट कुडनकुलम इन त्रिनेलवेली डिस्ट्रिक्ट। The Chamira power plant is a hydroelectric power plant located on Ravi River in Chamba district of Himachal Pradesh। नेक्स्ट है जो क्या है पतरातू पावर प्लांट इज़ ए थर्मल पावर प्लांट एट रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड स्टेट। पतरातू पावर प्लांट इज़ ए थर्मल पावर प्लांट एट रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड स्टेट। उसके बाद नेक्स्ट है देयर इज़ ए सोलर पावर प्लांट ऑन द ग्वाल पहाड़ी या ग्वाल हिल। ठीक है, लोकेटेड इन गुरुग्राम इन हरियाणा।
There is a solar power plant on the Gwal Pahadi, Gwal Hill, located in Gurugram in Haryana. Hence option D is the correct answer. अब देखते हैं, अभी हमने पढ़ा कि जो चमेरा है, चमेरा किससे रिलेटेड है? चमेरा पावर प्लांट इज ए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट लोकेटेड ऑन रावी रिवर इन चंबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश. तो किससे रिलेटेड है? चमेरा. चमेरा पावर प्लांट इज ए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट. तो चमेरा रिलेटेड हो गया हाइड्रो पावर से. ए का हो गया 3. ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ए का 3. नेक्स्ट है ग्वाल पहाड़ी. हमने पढ़ा ग्वाल पहाड़ी किस चीज़ के लिए फेमस है? There is a solar power plant on the Gwal Pahadi hill located in the Gurugram in Haryana. ठीक है, There is a solar power plant on the Gwal Pahadi या फिर ग्वाल पहाड़ी या हिल लोकेटेड इन द गुरुग्राम इन हरियाणा. ग्वाल पहाड़ी में क्या है? सोलर पावर प्लांट है. ठीक है, तो ग्वाल पहाड़ी किससे रिलेटेड होगी? सोलर पावर से. बी का 4 हो गया. उसके बाद नेक्स्ट है कुंदनकुलम. जैसा कि हमको पता है कुंदनकुलम किससे रिलेटेड है? कुंदनकुलम एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो कि तमिलनाडु में स्थित है. तो कुंदनकुलम क्या हो गया? न्यूक्लियर पावर प्लांट. तो न्यूक्लियर यानी सी का हो जाएगा 1 एटॉमिक पावर. ठीक है, नेक्स्ट है पतरातू. पतरातू क्या है? पतरातू पावर प्लांट इज ए थर्मल पावर प्लांट एट रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड. पतरातू पावर प्लांट क्या है? एक थर्मल पावर प्लांट है. थर्मल पावर प्लांट एट रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड स्टेट. तो पतरातू क्या है? पतरातू एक थर्मल पावर प्लांट है. ठीक है, तो पतरातू हो जाएगा डी का 2 थर्मल पावर प्लांट. ठीक है, तो इसको देख लीजिए. चमेरा सबसे पहले हमने पढ़ा. चमेरा किससे रिलेटेड है? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से. तो हाइड्रो पावर हो जाएगा ए का 3. और उसके बाद ग्वाल पहाड़ी हमने पढ़ा सोलर पावर से रिलेटेड है. बी का 4. उसके बाद हो जाएगा कुंदनकुलम हमने पढ़ा सी. ये क्या है? एटॉमिक पावर से रिलेटेड है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है. तो सी का 1 हो जाएगा. नेक्स्ट है पतरातू. पतरातू क्या है? पतरातू पावर प्लांट इज ए थर्मल पावर प्लांट एट रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड स्टेट. पतरातू पावर प्लांट इज ए थर्मल पावर प्लांट. तो क्या है? पतरातू पावर प्लांट क्या है? एक थर्मल पावर प्लांट है. तो डी का हो गया 2. ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा. एक बार हम पूरा फिर से इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं. द कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट इज लोकेटेड इन तमिलनाडु. द कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट वॉज कंस्ट्रक्टेड इन कोलैबोरेशन विद रशिया एट कुंदनकुलम इन Tirunelveli district. The Chamera power plant is a hydroelectric power plant located on Ravi River in Chamba district of Himachal Pradesh. Patratu power plant is a thermal power plant at Ramgarh district of Jharkhand state. Patratu power plant is a thermal power plant at Ramgarh district of Jharkhand state. There is a solar power plant on the Gwal Pahadi, Gwal Hill, located in Gurugram in Haryana. Hence option D is the correct answer. तो हमने इसको पढ़ लिया. सभी को हमने देख लिया. क्या पढ़ा हमने? चमेरा में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है. हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से रिलेटेड हो जाएगा. ग्वाल पहाड़ी किससे रिलेटेड है? सोलर पावर से रिलेटेड है. कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर से रिलेटेड है यानी एटॉमिक पावर से रिलेटेड है. पतरातू क्या है? पतरातू एक क्या है? थर्मल पावर प्लांट है. पतरातू एक थर्मल पावर प्लांट है रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड स्टेट में. तो पतरातू किससे रिलेटेड है? थर्मल पावर से. तो हमने इनको देख लिया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सतारा इज़ वेल नोन. ठीक है, सतारा किस चीज़ के लिए जाना जाता है? विंड एनर्जी प्लांट के लिए. ठीक है, चालके वादी विंड एनर्जी प्रोजेक्ट इन सतारा महाराष्ट्र इज़ डेवलप्ड फॉर generating electricity. 500 windmills are put up all along the plateau to generate electricity. ठीक है, चालके वादी विंड एनर्जी प्रोजेक्ट है वो कहाँ पर है? सतारा महाराष्ट्र में. इज़ डेवलप्ड फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी. 500 windmills are put up all along the plateau to generate electricity. क्वेश्चन नंबर 4 है. फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सतारा इज़ वेल नोन. सतारा इज़ वेल नोन फॉर द विंड एनर्जी प्लांट. ठीक है, चालके वादी विंड एनर्जी project in Satara, Maharashtra is developed for generating electricity. 500 windmills are put up all along the plateau to generate electricity. Next question है क्वेश्चन नंबर 5.
विच अमंग द फॉलोइंग रैंक्स फर्स्ट इन विंड पावर जनरेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ विंड पावर जनरेशन, तमिलनाडु 98,857.67 मेगावाट। तमिलनाडु 9857.67 मेगावाट इज एट फर्स्ट पोजीशन विंड पावर जनरेशन में, ठीक है। आफ्टर दैट गुजरात 9043.82 मेगावाट होल्ड्स द सेकेंड रैंक एज तमिलनाडु इज़ नॉट मैंशनड। यहाँ पर क्या है, तमिलनाडु किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए तमिलनाडु के बाद सेकंड नंबर में आता है गुजरात। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर गुजरात हो जाएगा। तो ध्यान रखना है विच अमंग द फॉलोइंग रैंक्स फर्स्ट इन विंड पावर जनरेशन। वैसे विंड पावर में फर्स्ट नंबर पर कौन है, तमिलनाडु है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ विंड पावर जनरेशन, तमिलनाडु 9857.67 मेगावाट इज़ एट फर्स्ट पोजीशन। तमिलनाडु फर्स्ट पोजीशन में है विंड पावर जनरेशन में, ठीक है। आफ्टर दैट गुजरात, उसके बाद गुजरात सेकंड नंबर पर है और गुजरात विंड एनर्जी का प्रोडक्शन करता है 9043.82 मेगावाट। 143.82 मेगावाट जो विंड एनर्जी है, इतना विंड पावर को जनरेट करता है गुजरात सेकंड नंबर पर आफ्टर तमिलनाडु, ठीक है। एज तमिलनाडु इज़ नॉट मेंशन्ड इन द गिवन ऑप्शन, यहाँ पर तमिलनाडु मेंशन नहीं किया गया है, इसीलिए हम क्या करेंगे, तमिलनाडु के बाद सेकंड नंबर विंड पावर जनरेशन में गुजरात का ही है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में which one of the following statement about energy production and consumption in India is not correct। बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। पहला स्टेटमेंट है ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड एनर्जी प्रोडक्शन इन इंडिया हैज शोन ए डिक्लाइनिंग ट्रेंड। तो पहला स्टेटमेंट सही है कि ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड एनर्जी प्रोडक्शन इन इंडिया हैज शोन ए डिक्लाइनिंग ट्रेंड। बी है द पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन इन द वर्ल्ड is lowest in India। The per capita energy consumption in the world is lowest in India। दूसरा स्टेटमेंट भी सही बताया गया है। थर्ड स्टेटमेंट को बताया गया है कि ये सही नहीं है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, द नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कंट्रीब्यूट लेस देन 1% ऑफ द टोटल कॉमर्शियल एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, बिकॉज द नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी contribute approximately more than 14% of the total commercial energy produced in India, ठीक है। इसीलिए सी जो है, सी ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, because the non-conventional sources of energy contribute approximately more than 14% of the total commercial energy produced in India, ठीक है। जबकि स्टेटमेंट सी में क्या लिखा गया है, ऑप्शन सी में द नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कंट्रीब्यूट लेस देन 1% ऑफ द टोटल कॉमर्शियल एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। ये क्या है, गलत है। सही स्टेटमेंट क्या होगा, द नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कंट्रीब्यूट अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 14% ऑफ द टोटल कॉमर्शियल एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। इसीलिए स्टेटमेंट सी रॉन्ग है, ठीक है। ऑप्शन डी क्या है, द इंडस्ट्री इज़ द मेजर एनर्जी कंजम्पशन सेक्टर इन इंडिया। ये बात भी बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है द बिगेस्ट विंड एनर्जी प्रोजेक्ट इन एशिया विद ए कैपेसिटी ऑफ 150 मेगावाट इज़ लोकेटेड इन। इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। द बिगेस्ट विंड एनर्जी प्रोजेक्ट इन एशिया विद ए कैपेसिटी ऑफ 150 megawatt is located in Tamil Nadu. At the time when the question was asked in 1999, Asia's biggest energy project was established in village Muppandal 150 megawatt in Tamil Nadu, ठीक है। इसीलिए इसका आंसर तमिलनाडु होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेन एरिया फॉर प्रोटेक्शन ऑफ टाइडल एनर्जी। इसका आंसर है गल्फ ऑफ खंबात या गल्फ ऑफ कैम्बे, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेन एरिया फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ टाइडल एरिया, तो टाइडल एनर्जी, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि द मेन एरिया फॉर प्रोडक्शन ऑफ टाइडल एनर्जी कौन सा है, गल्फ ऑफ खंबात या गल्फ ऑफ कैम्बे। India has a long coastline with estuaries and gulfs where tides are strong enough to move turbines for electrical power generation.
The total identified potential of tidal energy is about 9,000 megawatt. West Coast Gulf of Cambay has a production capacity of 7,000 megawatt. Gulf of Kutch has 1200 megawatt capacity and Sundarban has the capacity of less than 100 megawatt. ठीक है, तो क्या होगा? द मेन एरिया फॉर प्रोडक्शन ऑफ टाइडल एनर्जी इज गल्फ ऑफ खम्बात या फिर गल्फ ऑफ कैम्बे. इंडिया हैज़ ए लॉन्ग कोस्ट लाइन with the estuaries and gulfs where tides are strong enough to move turbines for electrical power generation. The total identified potential of tidal energy is about 9,000 megawatt. West Coast Gulf of Cambay has a production capacity of 7,000 megawatt. Gulf of Kutch has 1200 megawatt capacity and Sundarban has the capacity of less than 100 megawatt. तो सबसे ज़्यादा कैपेसिटी किसकी है? सबसे ज़्यादा जो कैपेसिटी है, ठीक है, जो गल्फ ऑफ कैम्बे है वो कितना प्रोडक्शन करता है? वेस्ट कोस्ट ऑफ गल्फ ऑफ कैम्बे हैज़ ए प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 7,000 मेगावाट. द टोटल आइडेंटिफाइड पोटेंशियल ऑफ टाइडल एनर्जी is about 9,000 megawatt. West Coast Gulf of Cambay has a production capacity of 7,000 megawatt. Gulf of Kutch has 1200 megawatt capacity and Sundarban has the capacity of less than 100 megawatt. तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया था? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन एरिया फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टाइडल एनर्जी? तो इसका आंसर हो जाएगा गल्फ ऑफ खम्बात, गल्फ ऑफ कैम्बे. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9. मोस्ट पोटेंशियल एरिया फॉर टाइडल एनर्जी इन इंडिया इज? इसका आंसर हो जाएगा भावनगर. इन इंडिया एज ए रिजल्ट ऑफ बीइंग सराउंडेड बाय सी ऑन 3 sides has a high potential to harness tidal energy. The 3 most potential locations in this regard are Gulf of Cambay, West Coast, Gulf of Kutch, West Coast, and Ganges Delta, Sundarbans, West Bengal, East Coast. The most attractive locations are the Gulf of Cambay and the Gulf of Kutch. क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया है? मोस्ट पोटेंशियल एरिया फॉर टाइडल एनर्जी इन इंडिया इज भावनगर. ठीक है. India, as a result of being surrounded by a sea on 3 sides, has a high potential to harness tidal energy. The 3 most potential locations in this regard are Gulf of Cambay, West Coast, Gulf of Kutch, West Coast, and Ganges Delta, Sundarbans, West Bengal, East Coast. The most attractive locations are the Gulf of Cambay and the Gulf of Kutch. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10. विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन? तो इसका आंसर हो जाएगा NHPC. विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन? इसका आंसर है NHPC. NHPC इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन. NHPC किससे रिलेटेड है? NHPC इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन. NHPC लिमिटेड, National Hydroelectric Power Corporation, is an Indian hydropower generation company that was incorporated in the year 1975 with an objective to plan, promote and organize an integrated and efficient development of hydroelectric power in all aspects. Later on, NHPC expanded its objects to include other sources of energy like geothermal, tidal and wind etc. क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन? इसका आंसर है NHPC. NHPC इज रिलेटेड टू द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन. NHPC इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन. NHPC Limited, National Hydroelectric Power Corporation, is an Indian hydropower generation company that was incorporated in the year 1975 with an objective to plan, promote and organize an integrated and efficient development of hydroelectric power in all aspects. Later on, NHPC expanded its objects to include other sources of energy like geothermal, tidal, wind etc. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया रैंक्स फर्स्ट इन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी एंड जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? इसका आंसर है गुजरात. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इसमें क्या पूछा है क्वेश्चन में? इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन.
Which one of the following states of India ranks first in installed capacity and generation of electricity? ठीक है, तो जब ये क्वेश्चन पूछा गया था 2006 में, तो तब उस टाइम पे इसका आंसर था गुजरात। ठीक है, व्हेन द क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2006, गुजरात स्टैंड्स फर्स्ट इन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी एंड जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। Present situation, total installed capacity in megawatt of power in the states as on 28 February 2022 is as follows. फर्स्ट नंबर पे है महाराष्ट्र है 42,142.77। ठीक है, इतना मेगावाट का पावर जनरेशन है। गुजरात का है 41,688.94 मेगावाट का पावर जनरेशन है सेकंड नंबर पर। और थर्ड नंबर पे है तमिलनाडु 35,507.09 मेगावाट। उसके बाद फोर्थ नंबर पर है कर्नाटका 29,907.80। Present situation, total installed capacity in megawatt of power in the states as on 28 February 2022 is as follows. ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी का जो पावर है उसकी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है उसमें फर्स्ट नंबर पर है महाराष्ट्र स्टेट, सेकंड नंबर पर है गुजरात स्टेट, थर्ड नंबर पर है तमिलनाडु स्टेट और फोर्थ नंबर पर है कर्नाटका। फर्स्ट नंबर पर है महाराष्ट्र, सेकंड नंबर पर है गुजरात, थर्ड नंबर पर है तमिलनाडु, फोर्थ नंबर पे है कर्नाटका। किस चीज़ में? टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ पावर में। ठीक है, जो लीडिंग स्टेट्स हैं महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु एंड कर्नाटका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। इन इंडिया पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ एनर्जी इन 1994 वॉज। पूछ रहे हैं कि 1994 में इंडिया में पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ एनर्जी कितना था, तो इसका आंसर हो जाएगा 243 किलोग्राम ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का सी। In India, per capita consumption of energy in 1994 was oil equivalent of 244 kilogram of oil, which was very less than world standards to per capita consumption of energy of 1471 kilogram. In India, per capita consumption of energy in 1994 was oil equivalent of 244 kilogram of oil, which was very less than world standards to per capita consumption of energy of 1471 kilogram. Next है क्वेश्चन नंबर 13। Rampura, which became the first village in India to have its Rampur, ठीक है, Rampur, which became the first village in India to have its solar power plant is situated in, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। जो रामपुर विलेज है वो कहाँ पर है? रामपुर became the first village in India to have its power plant is situated in उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये रामपुर है। रामपुर which became the first village in India to have its solar power plant is situated in उत्तर प्रदेश। रामपुर became the first village in India to have its solar power plant is situated in उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। कंसिडर द फॉलोइंग रीजन्स फॉर फाइनेंशियल सिकनेस ऑफ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड SEBs इन इंडिया। तो इसमें क्या है, स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है, बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट इसके लिए सही हैं। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग रीजन्स फॉर फाइनेंशियल सिकनेस ऑफ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड SEBs इन इंडिया। ठीक है, विच ऑफ द अबव आर करेक्ट, ये बताना है। तो पहला स्टेटमेंट है सेल ऑफ पावर टू एग्रीकल्चरल एंड डोमेस्टिक कंज्यूमर्स बिलो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। नंबर 2 है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज आर वेरी हाई। नंबर 3 लैक ऑफ कॉमर्शियल ऑटोनॉमी फॉर SEBs। ठीक है, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स। फोर्थ है स्टेट गवर्नमेंट्स हैव इम्प्लीमेंटेड सोशल सब्सिडी पॉलिसीज थ्रू स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स। ठीक है, तो इसमें से बताना है विच ऑफ द अबव आर करेक्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1, 2, 3 एंड 4। यानी ये चारों ही स्टेटमेंट क्या हैं, ये सभी रीजंस हैं फॉर द फाइनेंशियल सिकनेस ऑफ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड SEBs इन इंडिया। ये चारों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं।
ठीक है. There are various loopholes in the functioning of state electricity boards in India, and they have faced hardships due to administrative deficiencies, lack of financial resources, wide transmission and distribution losses, skewed skewed tariff structure leading to unsustainable cross subsidies, etc. State governments have implemented social subsidy policies through state electricity board SEBs in the agrarian sector. According to the 11th 5-year plan, India has higher transmission and distribution losses than other countries. The great deal of electricity in remote areas and less investment in distribution system, etc. are prime roadblocks to these losses. ठीक है. There are various loopholes in the functioning of state electricity boards in India, and they have faced hardships due to administrative deficiencies, lack of financial resources, wide transmission and distribution losses, skewed tariff structure leading to unsustainable cross subsidies, etc. State governments have implemented social subsidy policies through state electricity boards in the agrarian sector. According to 11th 5-year plan, India has higher transmission and distribution losses than other countries. The great deal of electricity in remote areas and less investment in distribution system, etc. are prime roadblocks to these losses. ठीक है. क्वेश्चन 2011 का है, उस टाइम के अकॉर्डिंग पूछा गया है कि कंसीडर द फॉलोइंग रीजंस फॉर फाइनेंशियल सिकनेस ऑफ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड SEBs इन इंडिया. तो इसमें ये चारों ही फैक्टर्स आ जाएंगे, चारों ही स्टेटमेंट इसके रीज़न होंगे. सेल ऑफ पावर टू एग्रीकल्चरल एंड डोमेस्टिक कंज्यूमर्स बिलो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. सेकंड फैक्टर है, सेकंड रीज़न है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज आर वेरी हाई. थर्ड पॉइंट है लैक ऑफ कॉमर्शियल ऑटोनॉमी फॉर स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स. स्टेटमेंट नंबर 4 है स्टेट गवर्नमेंट्स हैव इम्प्लीमेंटेड सोशल सब्सिडी पॉलिसीज थ्रू स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स. तो ये चारों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं. ठीक है. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑल आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स. ठीक है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15. The power plant of Manikaran based on geothermal energy is in the state of, इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश. The power plant of Manikaran based on geothermal energy is in the state of हिमाचल प्रदेश. इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दिया गया है मणिकरण के बारे में. The power plant of Manikaran based on geothermal energy is located in the Parvati Valley on river Parvati, northeast of Bhuntar in the Kullu district of Himachal Pradesh. The area is well known for its hot springs. The hot springs in the valley temperature range between 32 degrees centigrade to 96 degrees centigrade. The hottest one is at Manikaran at 96 degrees centigrade, which is boiling temperature at that altitude 3000 meter. The location spread over a 45-kilometer stretch from west to east with thermal springs at Kashol 76 degrees centigrade, Manikaran 96 degrees centigrade, Khir Ganga 49 degrees centigrade and Pulga 44 degrees centigrade. The electricity is generated by these sources of thermal springs. तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा था. द पावर प्लांट ऑफ मणिकरण बेस्ड ऑन जियोथर्मल एनर्जी इज़ इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश. मणिकरण कहाँ पर है. मणिकरण पावर प्लांट है हिमाचल प्रदेश में. ठीक है. बेस्ड ऑन जियोथर्मल एनर्जी इज़ इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन नंबर 16 है The power plant at Manikaran based on geothermal energy is located in the state of. तो क्या है अभी हमने इसको पढ़ा. The power plant at Manikaran based on geothermal energy is located in the state of Himachal Pradesh. ठीक है. The power plant at Manikaran based on geothermal energy is located in Parvati Valley on river Parvati in Kullu district of Himachal Pradesh. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। बताना है कि कौन सा नॉट करेक्टली मैच है। पहला है, ये सभी हॉट स्प्रिंग्स हैं और उनकी लोकेशंस हैं। मणिकरण हॉट स्प्रिंग इज़ इन हिमाचल प्रदेश, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी हॉट स्प्रिंग्स कहाँ है? ये भी हिमाचल प्रदेश में है। ज्वालामुखी इज़ ए टाउन एंड म्यूनिसिपल काउंसिल इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है। अमंग द 51 शक्तिपीठ ज्वालामुखी देवी टेम्पल इज सिचुएटेड हेयर। यहाँ पर क्या है, जो 51 शक्तिपीठ हैं उसमें से एक जो है ज्वालामुखी देवी टेम्पल यहाँ पर स्थित है। कहाँ पर है ज्वालामुखी? ज्वालामुखी इज़ ए टाउन एंड म्यूनिसिपल काउंसिल इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ज्वालामुखी हिमाचल प्रदेश में है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। तो ऑप्शन बी इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। उसके बाद सी है अनहोनी हॉट स्प्रिंग्स कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और तप्ता पानी हॉट स्प्रिंग कहाँ है? उड़ीसा में। और अनहोनी हॉट स्प्रिंग्स कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तप्ता पानी हॉट स्प्रिंग इज इन उड़ीसा। ज्वालामुखी इज ए टाउन एंड म्यूनिसिपल काउंसिल इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। अमंग द 51 शक्तिपीठ ज्वालामुखी देवी टेम्पल इज सिचुएटेड हेयर। दस ऑप्शन बी इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड, क्योंकि जो ज्वालामुखी है वो कहाँ पर है? वो है हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स ऑफ एनर्जी इज़ नॉट ए कॉमर्शियल सोर्स। इसमें से बताना है कौन सा सोर्स ऑफ एनर्जी कॉमर्शियल सोर्स नहीं है। इसका आंसर होगा बायोगैस। बायोगैस इज़ नॉट ए कॉमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी। जबकि कोल, पेट्रोलियम, एटॉमिक एनर्जी, नेचुरल गैस, ये सभी क्या हैं? कॉमर्शियल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं। ठीक है। और इनको क्या कहा जाता है? These are also known as non-renewable and traditional resources. ठीक है। Coal, petroleum, natural gas and atomic energy are commercial sources of energy, also known as non-renewable and traditional resources. Whereas wind, solar, biomass, geothermal, tidal and hydropower energy sources are non-commercial sources of energy and also known as renewable and non-traditional resources. ठीक है। तो क्वेश्चन 18 क्या था? विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स ऑफ एनर्जी इज़ नॉट ए कॉमर्शियल सोर्स। इनमें से कॉमर्शियल सोर्स कौन नहीं है? तो कॉमर्शियल सोर्स नहीं है बायोगैस। जबकि पेट्रोलियम, एटॉमिक एनर्जी और जो नेचुरल गैस हैं ये सभी क्या हैं? कॉमर्शियल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं। Coal, petroleum, natural gas and atomic energy are commercial sources of energy, also known as non-renewable and traditional resources, whereas wind, solar, biomass, geothermal, tidal and hydropower energy sources are non-commercial sources of energy, also known as renewable non-traditional resources. ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। विच इज़ नॉट ए रिन्यूएबल रिसोर्स। बताना है कौन सा इसमें से रिन्यूएबल रिसोर्स नहीं है, यानी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। इसका आंसर है एनर्जी ऑफ वाटर। एनर्जी ऑफ वाटर भी क्या है? रिन्यूएबल रिसोर्स है। एनर्जी ऑफ सन, ये भी रिन्यूएबल रिसोर्स है। एनर्जी ऑफ अर्थ, ये भी रिन्यूएबल रिसोर्स है। तो ऐसा सोर्स बताना था जो कि नॉट ए रिन्यूएबल रिसोर्स हो। तो ये यहाँ क्या हो जाएगा आंसर? नन ऑफ द अबव। ठीक है। Renewable sources are those that are replenished by the environment over a relatively short period of time. These types of resources renew so fast that it is regenerated by the time we use it completely. Solar energy, the energy of water, the energy of earth, wind energy are all renewable sources of energy. Thus option D is the correct answer. डी क्या है? नन ऑफ द अबव, बिकॉज एनर्जी ऑफ वाटर, एनर्जी ऑफ सन, एनर्जी ऑफ अर्थ ऑल आर द रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज़ ए लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ सोलर एनर्जी इन इंडिया। इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटका। ठीक है। Karnataka tops the list of the states with the highest installed solar power generation capacity in the country. Karnataka has a total installed capacity of about 7,346.85 megawatt as on 28 February 2021.
as per Ministry of New and Renewable Energy, as on 28 February 2022, Rajasthan 10,687.58 megawatt ranked first in the installed solar power generation capacity, ठीक है, फॉलोड बाय कर्नाटका एंड गुजरात। तो अगर हम डेटा देखें, रीसेंट का डेटा जो कि 28 फरवरी 2022 को आया है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल रिसोर्सेज का, तो उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट नंबर पे कौन है? राजस्थान है इंस्टॉल्ड सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी में। सेकंड नंबर पर है कर्नाटका, थर्ड नंबर पर है गुजरात स्टेट, ठीक है। एज पर मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी एज ऑन 28 फरवरी 2022, राजस्थान रैंक्ड फर्स्ट इन द इंस्टॉल्ड सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी फॉलोड बाय कर्नाटका एंड गुजरात, ठीक है। राजस्थान में कितना है इंस्टॉल्ड सोलर पावर जनरेशन? 10,687.58 मेगावाट। राजस्थान रैंक्ड फर्स्ट इन द इंस्टॉल्ड सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी फॉलोड बाय कर्नाटका में कितना है इंस्टॉल्ड सोलर पावर जनरेशन? 7,573.32 मेगावाट। गुजरात में कितना है इंस्टॉल्ड सोलर पावर जनरेशन? थर्ड नंबर पर है 6,377.56 मेगावाट सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी है गुजरात की, ठीक है। तो ये डेटा था, जो ये क्वेश्चन है 2020 का है। तो इसमें क्या हो जाएगा इसका आंसर? कर्नाटका हो जाएगा। उस टाइम के अकॉर्डिंग कर्नाटका टॉप्स द लिस्ट ऑफ द स्टेट्स विद द हाइस्ट इंस्टॉल्ड सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी इन द कंट्री। इट हैज़ ए टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ अबाउट 7,346.85 मेगावाट एज ऑन 28 फरवरी 2021। ये 2021 के डेटा के अकॉर्डिंग है। और अगर हम अभी लेटेस्ट डेटा देखें 2022 का मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का, तो उसके अकॉर्डिंग जो राजस्थान है वो इंस्टॉल्ड सोलर पावर जनरेशन में फर्स्ट नंबर पर है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आएगा कर्नाटका, थर्ड नंबर पर आएगा गुजरात इंस्टॉल्ड सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी में, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर पे है प्रेजेंट टाइम पे 28 फरवरी 2022 के डेटा के अकॉर्डिंग राजस्थान फर्स्ट नंबर पर है इंस्टॉल्ड सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी में। सेकंड नंबर पर कर्नाटका है और थर्ड नंबर पर गुजरात है इंस्टॉल्ड सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव द हायर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विंड पावर? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु एंड गुजरात, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द टोटल विंड पावर कैपेसिटी इन द कंट्री इज़ 302.25 gigawatt at 100 meters above ground level and 695.50 gigawatt at 120 meters. According to this, the states in gigawatt with more potential for development of wind energy from the given options are as follows. अगर हम स्टेट्स को देखें और उनका 100 मीटर्स अबव ग्राउंड लेवल एंड 120 मीटर्स अबव ग्राउंड लेवल, तो उनका क्या है जो विंड एनर्जी का जो विंड पावर का डेवलपमेंट है वो कितना होगा? गुजरात का है इनमें सबसे ज़्यादा। गुजरात स्टेट में है 84.43 और 120 मीटर्स अबव ग्राउंड लेवल कितना हो जाएगा? 142.56 गीगावाट। राजस्थान का 100 मीटर्स अबव ग्राउंड लेवल जो विंड पावर जनरेशन है वो कितना है? 18.77 गीगावाट। और 120 मीटर्स अबव ग्राउंड लेवल कितना हो जाएगा राजस्थान का? 127.75 गीगावाट। तमिलनाडु स्टेट का ग्राउंड जो 100 मीटर्स अबव ग्राउंड लेवल में जो विंड पावर जनरेशन है वो कितना है? 33.80 गीगावाट। और 120 मीटर्स अबव ग्राउंड लेवल में तमिलनाडु का जो विंड एनर्जी का डेवलपमेंट है वो कितना है? 68.75 गीगावाट जनरेशन है, ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा है गुजरात, सेकंड नंबर पे है राजस्थान, थर्ड नंबर पे है तमिलनाडु। तो इसमें क्या है क्वेश्चन नंबर 21 में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव द हायर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विंड पावर? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु एंड गुजरात, ठीक है। यहाँ पर क्या है गुजरात और राजस्थान एक साथ नहीं दिया गया है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा फर्स्ट नंबर पे है गुजरात, सेकंड नंबर पे है राजस्थान नहीं दिया गया है, इसीलिए
गुजरात फर्स्ट नंबर पे है, उसके बाद राजस्थान और फिर तमिलनाडु। तो कौन सा ग्रुप हो जाएगा? तमिलनाडु एंड गुजरात, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। ए नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी इज, इसका आंसर है जो पेट्रोलियम है। पेट्रोलियम क्या है? नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, जबकि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोगैस, ये सभी क्या है? रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। पेट्रोलियम क्या है? नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। पेट्रोलियम ऑल्सो कॉल्ड क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है? पेट्रोलियम को क्रूड ऑयल भी कहा जाता है। पेट्रोलियम क्या है? एक फॉसिल फ्यूल है, लाइक कोल एंड नेचुरल गैस। पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम द remains of ancient marine organisms such as plants, algae and bacteria, ठीक है। तो पेट्रोलियम क्या है? ए नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी इज पेट्रोलियम। पेट्रोलियम ऑल्सो कॉल्ड क्रूड ऑयल इज ए फॉसिल फ्यूल लाइक कोल एंड नेचुरल गैस। पेट्रोलियम वॉज formed from the remains of ancient marine organisms such as plants, algae and bacteria. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड? सेंटर और उनका एनर्जी बताना है। तो कौन से सेंटर कौन सी एनर्जी के लिए फेमस हैं? तो सबसे पहले है पतरातू। पतरातू इज़ फेमस फॉर थर्मल एनर्जी। और झाकरी इज़ फेमस फॉर हाइडल एनर्जी। कलपक्कम इज़ फेमस फॉर न्यूक्लियर एनर्जी। और ऑप्शन डी है कोरबा। कोरबा किसके लिए फेमस है? विंड के लिए फेमस नहीं है। कोरबा इज़ फेमस फॉर थर्मल एनर्जी, ठीक है। तो ऑप्शन डी क्या है? इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड है। कोरबा इज़ फेमस फॉर थर्मल एनर्जी, ठीक है। Thus, D is not correctly matched as Korba is related to thermal energy, not the wind, ठीक है। तो इसके सेंटर और एनर्जी को मैच करना है। सबसे पहले पतरातू है। पतरातू कौन सी एनर्जी का सेंटर है? पतरातू इज़ रिलेटेड टू थर्मल एनर्जी। झाकरी किससे रिलेटेड है? झाकरी इज़ रिलेटेड टू द हाइडल एनर्जी। कलपक्कम इज़ रिलेटेड टू द न्यूक्लियर एनर्जी। कोरबा इज़ रिलेटेड टू द थर्मल एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा कंप्लीट होता है मिसलेनियस जो हम पढ़ रहे थे, एनर्जी का जो पार्ट है। उसके बाद अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम इंडस्ट्री को स्टार्ट करेंगे। तो अभी का लेक्चर यहीं पे रखते हैं। आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।